So, good morning, students. Let's have a quick revision till the other students join. So, in the last lecture, we started classes, objects, and implementation, second part. Okay, in the first part, we learned about the classes, mainly how to write classes, how the members are accessed, what is private public access part, and how the objects are accessing those elements with operator, how the dot operator, then how member functions are accessing the private and public data members, how member functions can access another member functions. So some of those more related with the class object member function part. Now what we are going to see here, the manipulation with the class variables, like what we can do or what we can include as the class data members more and more. So that in that we have learned the very first that you can use arrays within a class. So just like any other variable, you can have array as an member variable in your class, and you can use them with the member functions just to print their values, just to give them values, and many more operations can be performed with those arrays. Okay. The simple program to demonstrate the concept of array where we calculated the subject marks. We use two functions, get data, and one is total marks. Get data with the help of for loop, we entered the marks inside that array. With the help of second function total marks, we calculated the total of all those three subject marks again by using the for loop for that stored array values. Then array of objects, we can have the arrays of variables of type class. So in such case, it will be known as array of objects, because generally, how do we create array? We write the built-in data type int and then array name and its size in square bracket. If you, instead of built-in type, if you're using some class that is a user-defined data type, then it is called as array of objects. So we have seen this, how to create the array of objects. In this example, you may see that from the class employee, we have created three different category arrays: employee manager of 3, employee foreman of 15, employee worker of 3. By default, it allocates the four objects, these two variables to the four objects, that is namely manager of 0, manager of 1, manager of 2, manager of 3. Okay, so every object is going to get separate copies of these data members, that is name and age. But what about the functions? Functions are going to be used by all the objects commonly. This is how the allocation takes place. Here we have seen one example to demonstrate the concept of array of objects, where we make the user to enter the names of two engineers, their name age, and we displayed their name age using the array of objects. Memory allocation for objects. So this is something more important point we have learned in the previous lecture, that no separate space is allocated for member functions, but separate space is allocated for the data members for every object. This is the diagram. I hope you must have drawn this in your copies. You may see here every object will get the separate copies of whatever the data members in that class are. Suppose name age are two data members in the class, then every object will get the separate memory space for its name age. Object 2 separate memory space for name age. Object 3 separate memory space for its variables name age. But what about the member functions? The member functions, they are accessed by all the objects. They are stored only once inside the memory and then accessed by the objects whenever they need them. No separate copies are made for the functions of the class. This is the example showing the memory allocation for objects.
If there is registration number and age are two data members of the class student, then every object created from such class student will take up separate memory space for these two variables. S1, if you create this object, then registration number and age will be allocated separately. As for S2, these two variables will be created separately inside memory. For S3, these two variables will be allocated space inside memory separately, because every object is going to hold different data values, and that's why data members only are allocated separate memory space for every object. The concept we studied about the static data members and static member functions. So this is some of the one of the most important thing in C++. The properties that you must remember about the static data members are: it is initialized to 0, means the static variable is initialized to 0 when the first object of its class is created. Only one copy of that member is created, shared by all the objects of that class. Okay, and it is visible only within the class, but its lifetime is entire program. Since it is accessible everywhere, though it is written inside the class, it is accessible everywhere. The value is initialized to 0 when the first object of the class is created. Only one copy of this number is created. No separate copies are created. Whatever number of objects you create in the class doesn't matter. Only one static variable will be created. That's why it is static. The name is static. The simple program we have seen, where we have declared one static variable. We defined it outside of the class like this, and we manipulated it somehow inside one function get data and try to check these values. And we have already seen these manipulations. I have explained in the last lecture. So this diagram explains the whole concept that static variable created only one copy. Okay, only one copy, but the other regular data member like integer number of this class, since it is a regular normal data member of this class, all the objects of this class get separate number variable allocated inside memory space. But what about count variable? Since count is a static variable, only one copy of this variable is created. Here you can see count variable is created only once. But what about the number variable? Object 1 gets separate copy, object 2 gets separate copy, and object 3 gets separate number variable allocated inside the memory, because they are going to store the different values inside their number variables. Static member functions, as we have the data members, we can have static function also. So static member function की properties जो आपको ध्यान में रखनी है, that is the static member function can access only the static data members. Okay, and how do we call the static member function is by using the class name. No need of object and dot operator. You simply write the class name, you write the scope resolution operator, and hence you are able to access the function, static function. The simple program where we have declared one static variable count, and we have used one static member function show count. So what is the limitations of show count is it can't access the other variables like code because it is not static. So which things are accessible to the show count? Since the show count is a static member function, only the static data inside this class, that is count variable, can be accessed by this function. See, if you write here code, then it will give you error. So
In this program also we have done certain manipulation and checked the values of the regular variable, that is code, and the static variable count. Let's move on towards the next topic. Objects as function arguments. Okay, we can pass the objects also as an argument, as an parameter. Till now you have seen that we pass the variable or the array as an argument. See here, you may see here the parameterized function. अगर आपके हमारे प्रोग्राम में कोई होगा तो जैसे यहाँ देखो इस फंक्शन में void get data int a, तो यहाँ क्या किया है हमने, एक वेरिएबल एज एन आर्गुमेंट पास किया है, राइट. इनसाइड द मेन देखो जब हम लिखते हैं इसे तो कैसे करते हैं, a डॉट गेट डेटा, एंड क्योंकि प्रोटोटाइप फंक्शन का बोलता है कि यहाँ एक आर्गुमेंट चाहिए इन टाइप की, इसलिए हम जब इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें एक यहाँ आर्गुमेंट पास करनी पड़ती है इन टाइप की. सो आई हैव पास्ड हियर द वैल्यू 100. यू कुड हैव पास्ड एनी नंबर. तो ये हुआ नॉर्मल आर्गुमेंट. लेकिन क्या हम यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं? सो यस, वी कैन पास ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट ऑल्सो. सो there are two ways you can pass the objects as argument to a function. Either you can pass by value, and second you can pass by reference. These both methods you have studied in C language in first year. So when you pass by value, a copy of the object is passed to the function, and hence there are no changes in the actual object. When you pass it by reference, you are actually handing over the address, and hence actual object reflects the changes. इसका मीनिंग ये है, सपोज आई हैविंग मेरे अगर लेफ्ट और राइट हैंड में, अगर मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि लेफ्ट हैंड में रेड कलर का चॉक है और राइट हैंड में व्हाइट कलर का चॉक है, तो पास बाय वैल्यू ये होगा कि जहां मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि लेफ्ट हैंड में रेड है और राइट हैंड में व्हाइट कलर का चॉक है और स्वैप करके दिखा, तो आप क्या बोलोगे, लेफ्ट में व्हाइट चॉक प्लेस करो और राइट हैंड में रेड चॉक. ओके, जस्ट दिस इज व्हाट पास बाय वैल्यू, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको एक वैल्यू बताई है कि ऐसा ऐसा है, ठीक है, और फिर आप मुझे रिटर्न में कुछ बता रहे हो. सो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट चेंज हुई क्या? मेरे हाथों में जो एक्चुअली जो प्लेस थे चॉक्स वो चेंज हुए नहीं. जब आप पास बाय रेफरेंस बोलते हो, so actually I'm handing over those both chalks to you, and you are swapping them, and then you are handing over the white in left hand and red in right hand. मतलब आप लोगों को एक्चुअल हैंड ओवर करना जब चीज होता है वो हुआ पास बाय रेफरेंस, जहाँ सच में आप लोग क्या करते हैं, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को चेंज करते हैं, स्वैप करते हैं. लेकिन जब पास बाय वैल्यू होता है तो सिर्फ कॉपी पास होती है, मतलब ये ऐसी ऐसी चीजें हैं इनको स्वैप करते हो, ठीक है, और फिर रिजल्ट लॉजिक में इंप्लीमेंट होकर आपके पास आ जाएगा कि कैलकुलेशन उन कॉपीज पे होगा और फिर रिजल्ट मिलेगा. तो एक्चुअल जो एड्रेस पर की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, लेकिन पास बाय रेफरेंस में जो एक्चुअल एड्रेस पे स्टोर्ड चीज है वो चेंज होती है, वो अफेक्ट होती है. लेकिन पास बाय वैल्यू में एक्चुअल एड्रेस पे जो स्टोर्ड वैल्यू है वो चेंज नहीं होती. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पास बाय वैल्यू में सिर्फ हम कॉपी पास करते हैं, so any change made to the object inside the function do not affect the object used to call that function. But in case of pass by reference, you actually pass the actual object, so objects inside the function will reflect any changes made to that object. Okay, and hence this method is more efficient one. So in this example, let us see what happens. Here I am going to pass it by value. Okay, this example will be using the pass it by value, the object as an argument to a function. तो पहले आप इस प्रोग्राम का एक अप्रोच समझ लो. इस प्रोग्राम में क्या किया है, इस प्रोग्राम में हम दो ऑब्जेक्ट्स लेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट टाइम सेव करेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ आवर्स एंड मिनट्स. एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? हेलो? यस मैम. हेलो? यस मैम. ओके, फास्ट हो रहा है?
नहीं ना? ओके, इन दिस पहले इस की ओवरलाइन ये बता दूं मैं आपको इस प्रोग्राम में किया क्या है। इसमें हम दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और दोनों ही ऑब्जेक्ट्स टाइम सेव करेंगे। टाइम हम जनरली आवर्स मिनट्स सेकंड्स के फॉर्मेट में करते हैं, इसमें हम सिर्फ आवर्स और मिनट्स रखे हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमें ऐड करना है और तीसरा एक टाइम कैलकुलेट करना है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं 1 hour 15 minutes एंड 2 hours 30 minutes का एडिशन क्या होता है, so you calculate it automatically, you add the minute part, you add the hour part, और फिर मिनट्स में से जितना आवर्स में कैलकुलेट हो सकता है उतना आवर्स में ऐड करके आप उसका टोटल कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो वो जो आपका लॉजिक है वो आपको यहाँ प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है। तो प्रोग्राम में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको, तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो दोनों ऑब्जेक्ट है ना उसको हम एक फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे, सम नाम के फंक्शन में, और वो फंक्शन ने हमको इन दोनों की एडिशन कैलकुलेट करके देनी चाहिए। ठीक है, एक तीसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करने के लिए। तो इस तरह से हमारा इसमें ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा कि हम कैसे एज एन आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आप ये देखो, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, ओके, स्टैंडर्ड नेम स्पेस। द नेम ऑफ माय क्लास इज टाइम, इसमें मुझे कितने वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, आवर्स और मिनट्स। ठीक है, दो ही मैं फॉर्मेट में वेरिएबल्स में टाइम स्टोर करने वाली हूँ, सो आई विल यूज वन वेरिएबल इन टाइप का आवर्स और मिनट्स। देन वन I'm going to use here three functions. Okay, one is get time. गेट टाइम का जॉब ये होगा कि जो भी आर्ग्यूमेंट्स पास होगी आवर्स और मिनट्स के लिए वो रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट के आवर्स और मिनट्स वेरिएबल में असाइन हो जाए। एक फंक्शन होगा पुट टाइम, पुट टाइम का जॉब ये होगा कि वो डिस्प्ले करेगा रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट के लिए 8 मिनट्स वाला ये फॉर्मेट, ये जो दिखता है ना ये फॉर्मेट हमें, क्योंकि आउटपुट में डिस्प्ले तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो एक डिस्प्ले के लिए फंक्शन है, एक वैल्यू जहाँ असाइन होगी हर ऑब्जेक्ट वेरिएबल कैलकुलेट करने के लिए। ओके, so got the idea? Two variables, hours, minutes, and three functions. One is get time argument. This is a parameterized function with two arguments, int h comma int n. What is the job of get time? It will assign the first argument into the hours variable and will assign the second argument into the minutes variable. Of which object? जो object जो भी इसे कॉल करेगा उसकी ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो भी होंगे वो उस ऑब्जेक्ट के आवर्स और मिनट्स में असाइन कर देगा। ठीक है, व्हाट इज द जॉब ऑफ पुट टाइम? पुट टाइम विल सिंपली डिस्प्ले दोस असाइंड वैल्यूज। सो सी आउट आवर्स, यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए, जैसे 2 आवर्स है ना तो यहाँ आवर्स वेरिएबल की वैल्यू आ जाएंगी, उसके बाद ये प्रिंट होगा एज इट इज आवर्स एंड देन मिनट्स की वैल्यू आ जाएगी, जैसे 45 एंड मिनट्स, दिस वेरिएबल दिस पार्ट एज इट इज। तो ये आवर्स एंड ये हमने डबल कोट्स में डाला और मिनट्स इसको डबल कोट्स में डाला, और फिर ये सम फंक्शन, ये है हमारा एक्चुअल जिसमें हम जिसका कंसेप्ट हम अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्गुमेंट। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, सिर्फ टाइम कॉमा टाइम, तो मैंने सिर्फ क्या लिखा है, डेटा टाइप, और ये चलता है क्या, हाँ ये डेफिनेटली चलता है अगर आप फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो। सो नो नीड टू राइट डाउन द पैरामीटर्स नेम, आर्गुमेंट का नाम लिखने की यहाँ जरूरत नहीं होती, आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हो, आपकी सिंपलिसिटी के लिए यहाँ लिख देते हैं, वैसे ये फॉर्मेट भी एक्सेप्टेबल है, टाइम t1 सपोज एंड टाइम t2। ठीक है, तो ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट्स टाइम टाइप के, टाइम क्लास के, ठीक, एंड आई एम पासिंग देम एज एन आर्गुमेंट टू द सम फंक्शन। Now let us look inside what is there inside the sum function. See here, sum of time t1 comma t2. Okay, so we will define here minutes is equals to t1 dot minutes plus t2 dot minutes. देखो जब हम टाइम कैलकुलेट करते हैं ना तो सबसे पहले हम मिनट्स को ऐड करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके जो मिनट्स है वो कितने आ रहे हैं, जैसे हमारी केस में यहाँ 45 प्लस 30 75 आ रहा है, तो 75 मिनट में एक आवर बनता है, 1 घंटा बनता है ना,
तो इसलिए पहले हम मिनट्स के एडिशन करेंगे और उसको /60 करेंगे। तो मिनट/60 करने से मतलब डिवीजन से हमें उसका आवर्स मिल जाएगा, और उसके बाद हम मिनट्स मॉड 60 करके मतलब रिमाइंडर पार्ट जो होगा उससे हमें बचे हुए मिनट्स मिल जाएंगे। और फिर आवर्स के नए वेरिएबल में हम क्या करेंगे, दिस आवर्स प्लस t1 डॉट आवर्स, मतलब जो पहला ऑब्जेक्ट पास किया है उसका आवर्स वेरिएबल, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट पास किया है उसका आवर्स वेरिएबल, वो इस नए वेरिएबल में असाइन होगा। ठीक है। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो आवर्स मिनट, ये किसके वेरिएबल है? अगर हम t1 डॉट मिनट्स, t2 डॉट मिनट्स ऐसे एक्सेस कर रहे हैं, तो ये कौन है? ये मिनट्स और आवर्स किसके है? तो ये उसके आवर्स मिनट्स वेरिएबल है जो इसको कॉल करेगा फंक्शन। जो ऑब्जेक्ट इस सम फंक्शन को कॉल करेगा उसके ये वेरिएबल बन रहे होंगे तब। ठीक है। अब देखो यहाँ इंट मेन में क्या हो रहा है, I have to pass two arguments. See here, t1 dot get the arguments are passed, hence h and m. They will be assigned with which value? यहाँ पे 2 पास हो रहा है, यहाँ 45 पास हो रहा है, और फिर आवर्स और मिनट्स वेरिएबल में किसके, t1 के क्या वैल्यू असाइन हो जाएंगी, 2 एंड 45। सिमिलरली t2 वेरिएबल के आवर्स एंड मिनट्स वेरिएबल में कौन सी वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, 3 एंड 30। एंड देन व्हाट यू आर डूइंग, t3 डॉट सम t1 कॉमा t2। तो सिंपली आपको क्या करने हैं, ये जो पहले ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर लिए हैं इनको एज एन आर्गुमेंट यहाँ आप पास करना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ t3 एंड डॉट ऑपरेटर। so t3 will be calling some function with the argument of the two objects t1 comma t2। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा और उनके जो रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स है वो ऐड हो जाएंगे, एंड द रिजल्ट विल बी printed। So what we have done is t1 is equals to, देखो t1 is equals to, यहाँ ये रिजल्ट प्रिंट होगा with the help of t1 dot put time, then cout t2 is equals to t2 dot put time, cout t3 is equals to t3 dot put time। See here, I have just used some of the coding lines only। मेन फंक्शन की कोडिंग लाइन है ये। जब पहला जो बन रहा है लाइन आपका स्टेटमेंट कोड लाइन क्या है, टाइम t1 t2 3 थी। तो इस स्टेटमेंट में क्या क्या हो रहा है, t1 object, t2 object and t3 objects are getting created। every object will get the separate variable copy of hours and minutes। okay, the second line t1 dot get time 2 45, इस स्टेटमेंट में क्या होगा, with the help of get time function, जिसमें हमने ऑलरेडी कोड लिखा है कि पहली आर्ग्यूमेंट आर्स वेरिएबल में जानी चाहिए और दूसरी मिनट्स में। सो ऑटोमेटिकली t1's r variable will be assigned with 2 and t1's minutes variable is getting assigned with 45। the third code line t2 dot get time 3 30, इस स्टेटमेंट में क्या होगा, t2's r variable assigned with 3, t2's minutes variable will be assigned with 30। the third line t3 dot sum, इस स्टेटमेंट पे क्या होगा, जैसे ही हम t3 डॉट सम ऑफ t1 t2 ये कॉल करेंगे, दिस कैलकुलेशन पार्ट विल हैपन। मिनट्स इज इक्वल टू, उस जो फंक्शन में जो लिखा है ना वो आपको मैं लॉजिक वहां का एक्सप्लेन कर रही हूँ। मिनट्स इज इक्वल टू t1 डॉट मिनट्स प्लस t2 डॉट मिनट्स है, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1 डॉट मिनट्स, क्या है, t1 के मिनट्स की वैल्यू 45, t2 के मिनट्स की वैल्यू 30, तो वो मिनट्स में ऐड हो जाएगा, आंसर विल बी 75। ठीक है। अभी आर्स इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, मिनट/60, मतलब 75 डिवाइडेड बाय 60, व्हाट इज द आंसर, 1। डिवीजन जब होता है तो क्वोशंट पार्ट होता है ना रिटर्न, तो 1 आ गया आंसर, आर्स में आंसर। मिनट्स में अभी हम क्या करेंगे, मॉड्यूलेशन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो मॉड से क्या होता है, रिमाइंडर रिटर्न होता है। 75 मॉड 60 का आंसर क्या आएगा, 60 1 60, रिमाइंडर इज 15, तो मिनट्स में वैल्यू क्या आ गई, 15। ठीक है। तो 75 ये जो वैल्यू है आपकी मिनट की, इसमें से आपको 1 घंटा 15 मिनट अलग से मिल गए, ये हमने कैलकुलेशन निकाल लिया। अब इसको हम ऐड करेंगे, आर्स इज इक्वल टू द न्यू वैल्यू ऑफ आर विल बी आर प्लस t1 डॉट आर प्लस t2 डॉट आर। व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ आर, 1 प्लस t1 डॉट आर की वैल्यू क्या है, जो ऑलरेडी असाइंड है वहां पे वेरिएबल में 2, और t2 डॉट आर की वैल्यू क्या है, 3, तो आर की नई वैल्यू क्या होगी, 6।
तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 6,15. Okay, so T3 will return you the final value as 6 hours 15 minutes. और वही यहाँ पे भी आंसर है, राइट? 6 hours and what is the value of minutes? 15. The last value, check the last value, this one, not this one. ये तो हमने कैलकुलेशन के लिए पहले असाइन की. जो हमारी एंड वैल्यू है minutes 15 है और hours 6 है. तो इस तरह से हम क्या करते हैं प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स एज एन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं. यही कंसेप्ट आपको यूजफुल है फ्रेंड फंक्शन के लिए. दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक. फ्रेंड फंक्शन. फ्रेंड फंक्शन क्या है? सी, the friends are the close ones that we can share anything with them, right? So the limitations of the class is they cannot share their private data with the outsiders. तो अगर क्लास अपना प्राइवेट डेटा आउटसाइडर्स के साथ शेयर नहीं कर रही है और अगर हम किसी केस में चाहते हैं कि क्लास का प्राइवेट डेटा हम एक्सेस कर सके, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन. अगर आप चाहते हो कि कोई नंबर ऑफ क्लासेस है आपके पास और जिन सब में एक फंक्शन कॉमन रखना है जो उस क्लास का हिस्सा नहीं है या उस क्लास में डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इट शुड बी एबल टू एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ दिस क्लास, देन वी मेक सच फंक्शन एज अ फ्रेंड ऑफ दैट क्लास. और जब क्लास को पता चलता है कि यस दिस फंक्शन इज माय फ्रेंड, सो इट शेयर्स इट्स प्राइवेट डेटा विद दैट फ्रेंड. ओके, सो फ्रेंड फंक्शन इसीलिए बनाया गया है कि जहां हमें प्राइवेट डेटा एक्सेस नहीं मिलता क्लास का, सो solution over that is that we can use the friend function. Okay, and otherwise हमारे पास क्या है, प्रोग्रामर के पास solution क्या है कि don't use such functions because we will have the data hidden inside the class. लेकिन अगर किसी केस में you want to share that you want access to those private data of your class, then just declare some function, new function as a friend of that class, and now you will be able to share even the private data. लेकिन अगर फ्रेंड फंक्शन एक्सेस करता है प्राइवेट डेटा तो उसके भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है. उसे कैसे एक्सेस करना पड़ता है, वो क्या एक्सेस कर सकता है, कहाँ लिखा जाना चाहिए, कहाँ नहीं लिखा जाना चाहिए, उसके जो आपको रूल्स है वो ध्यान में रखने पड़ेंगे. ठीक है, ऐसे ही सिंपली फ्रेंड फंक्शन लिख दिया हो गया ऐसा नहीं है. उसके कुछ रूल्स है, कुछ सिंटैक्सेस है, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे तभी डेटा एक्सेस हो सकता है. ओके, सो जैसे यहाँ एग्जांपल यू कैन सी दैट टू क्लासेस मैनेजर एंड साइंटिस्ट defined inside the defined, and if they want to use the income tax function, okay, because manager and scientist both will be applied with this function income tax to operate on the objects of these classes, then what we can do, we can have one income tax function as a friend of these classes. And you can have a friend function or which is friend of number of classes. इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है. आपके प्रोग्राम में 100 क्लासेस है, 100 क्लासेस के लिए एक फ्रेंड फंक्शन आप लिखो चलेगा. All the classes private data will be accessible to that friend function. Okay, just the thing is that you have to declare that this function is a friend of that class. सिर्फ ये करना है. ठीक है, this is the syntax. You can see here class ABC. Inside this I have declared the friend function. So you just have to precede it with the keyword friend, and this just normally write down the syntax void xyz. This is the name of the function, this is the return type of the function, these are the arguments. तो ये सिंटैक्स ये यहाँ से तो आपके लिए कॉमन ही चीज है. सिर्फ आपको क्या करना है, फंक्शन के सामने फ्रेंड लिखना है. जैसे आप फंक्शन के सामने इनलाइन लिखते थे, उसको इनलाइन बनाने के लिए फंक्शन के सामने आपको फ्रेंड लिखना है, उसको फ्रेंड बनाने के लिए. These are some of the properties of a friend function. It can be defined anywhere in the program. It does not use the keyword friend or scope resolution operator when it is defined outside of the class. जब हम उसको क्लास के बाहर भी डिफाइन कर रहे हैं तो एक बार उसको पता चल गया ना क्लास को कि फ्रेंड है, अभी बार बार फ्रेंड लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सिर्फ आपको क्लास के अंदर ही एक बार उसको फ्रेंड बताना है कि ये इसका फ्रेंड रहेगा XYZ, तो XYZ को एक्सेस करने दो.
प्राइवेट चीजें। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। इसके बाद आप जितने भी बार एक्स वाई जेड को मेंशन करोगे, आपको फ्रेंड कीवर्ड बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है। You have to use the keyword friend to declare the function as friend. A function can be declared as a friend in any number of classes, and when you declare it as a friend function, it gets full access rights to the private members of the class. The special characteristics of the friend function: it is not in the scope of the class, okay, in which it is declared as friend, and hence it cannot be called using the object. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप फ्रेंड फंक्शन यूज करते हो तो आपको ये रूल्स फॉलो करने ही हैं। अटेंडेंस आ गई होंगी। सो यू कैन नॉट कॉल देम यूजिंग द ऑब्जेक्ट। तो फिर कैसे कॉल करते हैं फ्रेंड फंक्शन को? सिंपली बाय नेम। सिंपली बाय नेम। देखो स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टडी दिस थॉरोली, दिस थिंग। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जब आप नॉर्मल मेंबर फंक्शन कॉल करते हैं तो डॉट ऑपरेटर यूज करो ऑब्जेक्ट नेम के साथ। जब आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन कॉल करते हैं तो क्लास नेम यूज करो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ। जब आप फ्रेंड फंक्शन कॉल करते हैं तो सिंपली कॉल इट बाय नेम। ये जो चीजें है ना, ये आपको डिफरेंशिएट करके पढ़नी है, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। ओके, तो जब भी मैं ऐसी चीजें बोलती हूँ, तो जस्ट नोट डाउन और राइट इन सम अदर कलर्ड पेन, so just highlight those points. It can be invoked like a member function without help of any object. It cannot access the member names directly, and hence it has to use the object name and dot operator. किसके लिए? ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट ऑपरेटर फ्रेंड फंक्शन को यूज करना पड़ता है टू एक्सेस द प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स ऑफ द क्लास। डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है क्या? नहीं। तो ऑब्जेक्ट नेम के साथ डॉट ऑपरेटर यूज करो एंड देन इट इज एबल टू एक्सेस द प्राइवेट पार्ट ऑफ दैट क्लास। बट व्हेन यू नीड टू कॉल द फ्रेंड फंक्शन, सिंपली कॉल इट बाय नेम। फ्रेंड फंक्शन पब्लिक या प्राइवेट एरिया में डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड फ्रेंड फंक्शन टेक्स ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट। तो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट, वो कंसेप्ट आपको यहाँ पे ये चीज फ्रेंड फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन समझने में हेल्प करेगा। सी व्हाट वी हैव डन इन दिस प्रोग्राम। इसमें मैंने एक फ्रेंड फंक्शन यूज किया है टू कैलकुलेट द एवरेज और मीन ऑफ द टू प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। इस क्लास में मैं दो वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के डिक्लेयर करूंगी, ए और बी। अब हमें पता है कि ये प्राइवेट है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये हो गया प्राइवेट। पब्लिक तो यहाँ दिख ही रहा है, लिखा है, तो ये हो गया सब। इसके बाद वाला जितना भी पार्ट है, जहां तक आपकी क्लास एंड नहीं हो रही, कहाँ क्लास एंड हो रही है आपकी? ओके, the class will be ending after the this statement, semicolon, ठीक है। सी सो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आपकी क्लास है, ठीक है। और इसमें इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है ए बी के, मतलब ये हो गया प्राइवेट डेटा मेंबर। इसके ऊपर हमने लिखा है पब्लिक। पब्लिक के नीचे जितना भी यहाँ क्लास एंड होने तक पार्ट है, ये सब हुआ पब्लिक। ओके, अब बेसिक चीज हमको पता है कि प्राइवेट डेटा किसी को एक्सेसिबल नहीं है क्लास का, ओनली टू द पब्लिक पार्ट को है, और पब्लिक पार्ट को सब पूरे आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सेसिबल है। लेकिन ये हमने इसमें एक नया फंक्शन ऐड किया, फ्रेंड फंक्शन। तो ये क्या है? फ्रेंड फंक्शन यानी कि इस जरूरी नहीं है कि वो इस क्लास का मेंबर फंक्शन है, ये एक नए से हमने फंक्शन इस क्लास में लिखा है जिसके सामने हम फ्रेंड लिखते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करेगा? जैसे ही हम इसको फ्रेंड लिखते हैं ना, नाउ इट इज एबल टू एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास सैंपल, दैट इज ए बी। लेकिन क्या फ्रेंड फंक्शन डायरेक्टली एक्सेस करता है प्राइवेट मेंबर्स को? नहीं। Whenever friend function wants to access the variables, see, it is going to access them like this, object name and dot operator. अगर s
क्लास सैंपल का ऑब्जेक्ट है तो यू हैव टू राइट इट लाइक एस डॉट ए एस डॉट बी, ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ कोई सी वेरिएबल होता तो लिखना पड़ता एस डॉट सी। सो फ्रेंड फंक्शन ऑलवेज हैज टू यूज द डॉट ऑपरेटर along with the object name to access the private data members of its class in which it is defined. अब देखो इस सिंपल प्रोग्राम में हमने क्या किया है, तो मीन कैलकुलेट किया है मैंने, और मीन कैलकुलेट करने के लिए मैंने फ्रेंड फंक्शन यूज किया है। सो लुक एट द लॉजिक, क्लास सैंपल इंट ए बी, पब्लिक में लिखा है सेट वैल्यू, सेट वैल्यू से मैं क्या कर रही हूँ, ए और बी को वैल्यू असाइन कर दे रही हूँ इसमें। ठीक है, हमने इसमें कोई यूजर का इंटरेक्शन नहीं रखा, ए और बी को मैं खुद ही प्रोग्राम में वैल्यू असाइन कर रही हूँ 25 और 40। उसके बाद मैंने एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया है, तो फ्रेंड फ्लोट रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम है मीन, और इसमें देखो ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट क्या लेता है फ्रेंड फंक्शन, ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, सो सैंपल स्पेस एस। अब हम क्लास एंड करेंगे। ठीक है, इसका ब्रैकेट आ गया। Okay, so here we are. Okay. So float नाउ लुक एट दिस डेफिनेशन। आप सिर्फ इस चीज पे फोकस करो, ये इतना जो पोर्शन लिखा है ना, ये फ्लोट मीन, फिर से लिखा के यहाँ पे फ्रेंड, कोई लिखने की जरूरत नहीं, एक बार पता चल गया क्लास को कि दिस इज अ फ्रेंड ऑफ दैट क्लास। तो फिर से जब हम डिफाइन करेंगे क्लास के बाहर, तो ना स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत है ना कीवर्ड फ्रेंड की जरूरत है, सिंपली लिखो फ्लोट मीन सैंपल एस और उसकी डेफिनेशन क्या लिखा है डेफिनेशन में, रिटर्न फ्लोट ऑफ एस डॉट ए प्लस एस डॉट बी स्लैश 2.0। तो ये एस डॉट ए प्लस एस डॉट बी क्या हुआ, एस डॉट ए मीन्स यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट पास होगा उसका ए वेरिएबल की वैल्यू और एस के बी वेरिएबल की वैल्यू, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो और इसका आंसर रिटर्न करो। ये फंक्शन है मेन का। अब देखो मेन में क्या किया है हमने, हम फिर से मेन में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सैंपल एक्स, एक्स डॉट सेट वैल्यू, एक्स डॉट सेट वैल्यू जैसे कॉल होगा ये फंक्शन इन्वोक होगा, एक्स के ए और बी में कौन सी वैल्यूज असाइन हो जाएंगी 25 और 40। अब हम क्या लिखेंगे, मीन वैल्यू इज इक्वल टू मीन ऑफ एक्स। सी व्हाट वी हैव डन, वी हैव कॉल्ड द फ्रेंड फंक्शन मीन एंड व्हाट वी हैव पास्ड हियर द ऑब्जेक्ट पास किया हमने। अब हमारे पास एक्स के ए और बी की वैल्यू है 25 और 40, so it will automatically calculate those values, 25 plus 40 divided by 2, the answer is 32.5, which will be returned like this, mean value colon is equals to 32.5. This is how we use the friend function. तो आपको जो हम डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसमें एक ही चीज ध्यान में रखनी है स्टूडेंट, दैट you need to remember the characteristics of particular function. अगर मैं आपको बोलती हूँ स्टैटिक मेंबर फंक्शन यूज करके दिखाओ तो आपको झट से उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दिमाग में आ जानी चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कि स्टैटिक डेटा मेंबर यूज करके दिखाओ तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। फ्रेंड फंक्शन क्या है, उसका मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि बिना उसके यूज के पता होने के सिवा आप उसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले नो द यूज and then use, okay, in your program. Okay, so you may leave the meet.